वीर प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति में किसी भी आयोजन से पहले हम पुष्करों शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करते हुए हमारे जो पूरे देश की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे अकादमी उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे सभी CEO, CMD, चेयरमैन और विशेष रूप से DGPML वीर प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अभी आशीर्वाद দেখুন, এটা ন্যাশনাল মাইন সেফটি অ্যাওয়ার্ড এর প্রোগ্রাম। আমরা মাইন সেফটিকে সবচেয়ে বেশি মানে ইন বেঙ্গলি অনলি মাইন সেফটিকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি, কারণ একটাও যদি কোনো প্রাণের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তার উপরে কোনো আমরা দুঃখী কিছু আর হই না। সো উই গিভ দি টপ মোস্ট প্রায়োরিটি টু মাইন সেফটি। সো হিয়ার নট অনলি কোল মাইনিং বাট আদার মাইনিংস, ইভেন অয়েল রিগস, দে আর অলসো প্রেজেন্ট হিয়ার. So amongst that, DG, Director General of Mine Safety Department, decided they will have a national contest or competition sort of thing. So a lot of inspections have taken place through them, and after inspections they have come out with a list of safety on the basis of safety norms, that who will be the recipient of these awards. But whether someone receives the award or not, the importance of this event is very high, that everyone is trying to showcase the safety causes that they are fighting for and the safety the measures that they have adopted. So that is most vital, taking that spirit up, taking that competitiveness, and of course saving the life and doing mining with a purpose, with a responsiveness and with a responsibility. So that is the main crux of this theme of this event. This is the first year for national level. We do take it on the regional basis, but this is for the first time we are doing it on national basis. No, we will give them trophy. We will give them trophy and recognition both. No cash money, nothing. No, it's basically trophy. Sir, আপনার নামটার পরিচয়? আমি সমীরণ দত্ত, চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারত কোকিং কোল লিমিটেড ধানবাদ এবং চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড আসানসোল। Thank you. Accordingly, we treat all the mines, let it be private sector, captive, national government, state government, anywhere. All the rules are same. Accordingly, we exercise the SOPs and all those things. Okay. So, everywhere safety standard is same. Okay. Anywhere there is a standard, there we see if there is some lacuna, we do accordingly. We stress them and we do our job is increased. So, accordingly, we are doing to rectify the things. That is the thing. Okay. Any consultation that you are holding with the captive players because their production? Yes. So whoever captive mines or new player is coming in mining, we have a very depth conversation and depth conversation with them, so that they are understanding what are the rules, regulations to be followed. So that is our facilitator. We are also facilitators. So we make them understand what they have to do, what are the rules, and how easily they are doing. So this is ease of doing business or ease of doing mining. That is the process. We do that. Sir, what are the new initiatives in mine safety that government is looking at? New initiative is one is safety management plan, self-regulation,
scientific study. So mining is to be done on the basis of scientific study. Then self-regulation they have to. Safety management plan is basically based on self-regulation. You make your regulation how you will do the mining. That will be safe one. So accordingly, the safety management plan is made. Safe operating procedure or standard operating procedure is devised. Accordingly, mining is done. And all the promoting issues. So promotions means going between the workers, going around the workers and tell them what is the safety protocols, what workers have to do, what other supervisors have to do. That we have to protect. This safety awards, this is also a part of that safety message propagation. So this is a very good initiative as the mining industry or mining fraternity is just responding. So what happens, this concept, what all over India, whatever the mining companies are there, they have come over here. So they will know what the standards others are doing and where they stand. So they will try to improve their safety standards. That is the basic concept to organize these functions, and I am thankful to Prasad sir, he has taken the pain to organize all those things. Thank you. ओके थैंक यू गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आर.बी. ठाकरे, जनरल मैनेजर HSC ऑयल इंडिया लिमिटेड, पोस्टेड एट दुलियाजान फील्ड हेडक्वार्टर। तो जैसे कि पूछा गया कि प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और गैस हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे कोई ब्लॉक हमें अलॉट होता है तो सिस्मिक सर्वे द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं कि प्रोबेबल सोर्स क्या हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। उसके बाद जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि किस जोन में सॉइल के वेरियस जोन्स होते हैं, उसमें पता चलता है कि इस एरिया में ऑयल या गैस होने की संभावना होती है। उसके बाद जब ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग में जाके एक वेल लॉगिंग हमारी सर्विसेज होती है, उनसे आइडिया आ जाता है कि रिजर्वायर का साइज़ क्या होता है, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन ड्रिलिंग में हम लोग लेते हैं। जब प्रोडक्शन ड्रिलिंग में लेते हैं तो उसको फिर प्रोड्यूस करने के लिए हम एक ऑयल कलेक्टिंग स्टेशन या गैस कंप्रेसर स्टेशन है, तो हम ऑयल कलेक्टिंग स्टेशन में लेके उसको फिर सेपरेट करते हैं ऑयल, गैस और वाटर में। तो ऑयल जो है हम लोग रिफाइनरी को लेकर डिलीवरी कर देते हैं, गैस जो होता है हमारे नियर बाय सर्विसेज जो ऑपरेटर्स है उनको हम लोग देते हैं, और जो कस्टमर्स है लाइक टी गार्डन्स एंड ऑल हम लोग यूज़ करते हैं, और जो वाटर है वो हम लोग वाटर डिस्पोजेबल वेल में डिस्पोज करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है सर, इसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर जो क्रूड ऑयल होता है, और भी हाँ, तो जो क्रूड ऑयल होता है वो हम लोग जैसे आम भाषा में बोलते हैं वो कच्चा तेल है। तो ये जो है ना रॉ ऑयल है, इसको फिर वेरियस प्रोडक्ट जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन जो भी है, तो ये जो बनता है वो रिफाइनरी बनता है। तो हमारी जैसे है यहाँ पे, तो नियरेस्ट है दिग्बोई रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं अपनी साइड से। और ऑयल इंडिया का पाइपलाइन जो ऑपरेशन है, दो पाइपलाइन हम लोग ऑपरेट करते हैं। एक है नारकाटिया टू बरौनी 1157 किलोमीटर, और एक है नुमालीगढ़ टू रंगापानी जो सिलीगुड़ी है, वो है 660 किलोमीटर। तो जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है 660 किलोमीटर में, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं केरोसिन, पेट्रोल और डीजल हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो क्रूड ऑयल है हम लोग दुलियाजान से या नाहरकाटिया से हम लोग दिग्बोई और गुवाहाटी तक देते हैं। और अभी जो हमारे जो पंप स्टेशन थे अप टू बरौनी, तो बरौनी से हम लोग जो है ना रिवर्स पंपिंग की तरफ से नुमालीगढ़ तक ले आते हैं। यही हमारा प्रोसेस है। सर, मैंने पूछना चाहता हूँ कि जो ऑयल हम पंप से खरीदते हैं, हाँ हाँ, उसका तरीका आप कैसे ठीक करते हैं? उनका जांच कैसे कर सकते हैं? ये ठीक है या बेठीक है, उसमें कोई मिलावट है या नहीं? हाँ, तो ये क्या होता है, आप मतलब जो इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री, ये 3 टाइप में डिवाइड है। एक होता है अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ऑयल इंडिया इज बेसिकली अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब हम लोग ज़मीन से तेल सरफेस तक लाते हैं। फिर मिड स्ट्रीम हो गया ट्रांसपोर्टेशन, सम पार्ट ऑफ स्टोरेज, और उसके बाद जो है रिफाइनरी में देते हैं। तो ये जो रिफाइनरीज है जैसे IOCL है, BPCL है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिलीवरी कर देते हैं, जो कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ना, उसके लिए जैसे सेफ्टी साइड से आप बोलेंगे तो ISO सर्टिफिकेशंस है या ISRS सर्टिफिकेशंस है, वो लोग लेते हैं। और उसके बाद जो है जो उस पर आता है क्या बोलते हैं क्वालिटी का, और उनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं टाइम टू टाइम वो लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं और जो बेसिक टेस्ट है वो लोग करवाते हैं। तो उसकी जो
प्यूरिटी है, अगर उसमें कोई मिलावट है तो वो लोग पकड़ के फिर एक्शन लेते हैं। ये बेसिकली रिफाइनरी एंड से होता है, ऑयल इंडिया की तरफ से नहीं। तो आपने सारी आदमी के लिए हाँ, आप क्या समाचार देना चाहते हैं ऑयल इंडिया की तरफ से? ऑयल इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये माइंस सुरक्षा सप्ताह है या माइंस सुरक्षा तो यहाँ पे बोलता है, जैसे अग्नि की बात करते हैं हम लोग, फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट इज़ ए वेरी बैड मास्टर, है ना। सो आपको समझना है कि अग्नि सुरक्षा हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो, ये सारी जो चीज़ें आती है उसको आपको ध्यान में रखना है अपनी सुरक्षा के लिए। ये जब तक आपको सर्वेंट की तरह काम कर रही है, आपको सर्विस दे रही है, आप कंट्रोल में रखिए। आप अगर उसके साथ खेलने जाएंगे, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो अपनी जान की हिफाजत करें और सुरक्षित रहे, यही संदेश है हमारी तरफ से। जब कोई किसी को ज़रूरत हो, हाँ, तो किसके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं? आपके पास हमेशा नंबर है हाँ। जहाँ पे कॉल करके वो सुरक्षा मिलती है। आप देखिए कि आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे मुझे लोकल नंबर याद होते हैं, बट इन जनरल आपके घर में 2-3 चीज़ें होना ज़रूरी है। 3 नंबर आप देखेंगे, 100 इज़ ऑलवेज पुलिस, 101 ऑलवेज फायर एंड 108 इज़ एम्बुलेंस। ये 3 नंबर तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया यूनिवर्सल, लेकिन अगर आपको जब जनरल नंबर चाहिए पर्टिकुलरली आप एरिया का, तो आपका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, नियरेस्ट फायर स्टेशन है एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसका नंबर भी आपके साथ होना चाहिए। और परिवार को भी जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए, कि घर में कोई गिर गया, चोट लग गई, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इमीडिएटली क्या करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आपका परिवार खुश रहेगा, क्योंकि हमारी ऑयल इंडिया की तरफ से हम लोग परिवारों को भी सेफ्टी या सुरक्षा के जो निर्देश है समय समय पर देते रहते हैं, तो ताकि जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो सुरक्षा भी घर से ही शुरू होती है। ठीक है, पहले बताओ। मेरा नाम जय गोविंद यादव है, मैं झांझरा प्रोजेक्ट से हूँ। ये हम लोग का लॉन्ग वॉल पैनल है, ये एडवांस सपोर्टेड होता है। इधर से ये हम लोग का CRR मशीन है, ये हम लोग का कोल है, तो कोल ब्लॉक है। इसको ये काटते रहता है कंटिन्यू, और इसको ऑपरेट किया जाता है रिमोट के द्वारा। कटता है कोयला, फिर इसमें गिरता है चैन में, चैन से होते हुए वो BSL में जाता है, बेल्ट से होते हुए ये हम लोग UFC चैन है, ये FC चैन है, ये BSL है। वो वाला जो है आपका, वो सामने जो है वो BSL है। उधर से ये हो गया हम लोग का CM पैनल है। अच्छा, ज़मीन के नीचे ही चलता है। ये है हम लोग का CM मशीन है, रिमोट ऑपरेटेड होता है। ये है सरल कार, ये कोयला यहाँ से कटता है, ये हम लोग का पिलर होता है। अच्छा, तो ये जब कटता है तो यहाँ से इसमें लोड होता है कटने के बाद। अच्छा, शटल कार में। अच्छा, शटल कार के द्वारा देखिए मूव हो रहा है, शटल कार के द्वारा जाता है वो फीडर ब्रेकर। अच्छा, वहाँ पे कोयला जो बड़ा रहता है वो कर्सर होता है। अच्छा, तो उसके बाद वो जाता है उस बेल्ट में। अच्छा, जो हम लोग का है उस फीडर ब्रेकर के द्वारा। उसके बाद वो बेल्ट से होते हुए ये हम लोग का फैन घर है। अच्छा, ये है फैन घर, वो नीचे से कैसे हवा इनके में दिया जाता है सरफेस, ये उसके बेल्ट के द्वारा रिफाइन होते हैं। ये एयर नीचे का है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जो अंदर में थोड़ा हवा दिया जाता है, वो है जो नीचे का गर्म हवा है, ड्राई करते हैं। हाँ, ड्राई करते गर्म हवा को बाहर निकाला जाता है। ये बाहर निकाला रहा है उधर से जो है। और एक रिटर्न, ये रिटर्न का है, एक इंटेक होता है, ये हवा अंदर आने के लिए ये इसके माध्यम चाणक के नीचे से जाता है और पूरा गैलरी में हवा दिया जाता है कि आदमी वहाँ पे सफिशिएंट हवा दिया जाए काम करने के लिए। उसके बाद ये हवा को बाहर निकाला जाता है फैन के द्वारा। ये हम लोग का केज है जिसके द्वारा आदमी यहाँ से ये डोली से नीचे जाते हैं, काम करते हैं अपने जगह पे, और ये डोली अप डाउन होते रहता है। ये भी आदमी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। ये है, उसके बाद से वो हाँ बेल्ट चालू करना। उसके बाद जो वहाँ पे कोयला हम दिखाएं कट रहा था, वो कोयला बेल्ट के माध्यम से, ये सब जो बेल्ट है उस बेल्ट में आता है जो हम लोग BSL से वहाँ दिखाएं, और CM का फीडर ब्रेकर से जो बेल्ट गिरा आता है हम लोग का इसमें, इस बेल्ट के द्वारा ये मेन इंक्लाइन है, ये ट्रेवलिंग रूट भी का काम करता है।
नीचे जाने के लिए, जब ये ख़राब रहे या मेंटेनेंस नहीं रहता है तो। उसके बाद इस बेल्ट से कन्वेयर बेल्ट में गिरता है, फिर ये CHP है, यहाँ पे सभी कोयले के यहाँ जाता है सरफेस में, और ये हम लोग का बिल्डर से गाड़ी में लोड किया जाता है। लोड करने के बाद यहाँ पे वेट होता है, कितना है कोयला, वेट होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट है हम लोग का, ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये हम लोग का पंप हाउस है, नीचे का पानी, दूषित पानी हम लोग ऊपर उठाते हैं, फिर उसको रिफाइन करके फिर टैंकी के माध्यम से फिर सप्लाई देते हैं। यही है सर, ये हम लोग का है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और ये डोली को ऑपरेट करने के लिए हम लोग का वेंडिंग, ये डोली अप डाउन होता है उसका है। इसको हम लोग सोलर से भी हम लोग झांझरम जो किए हैं, सोलर का भी इसमें फंक्शन थोड़ा हम लोग लगा दिए हैं। और ये है इधर का जो उधर से फीडर बेकर था आपका कोयला को छोड़ा करने के लिए, इस बेल्ट से होते हुए उधर जा रहा है। ठीक है सर, ये सब रिमोट ऑपरेटेड है, सरकार भी। और ये आम आदमी के लिए आप क्या समाचार देना चाहते हैं? आम आदमी के लिए हम लोग ये चाहेंगे कि एक बार आए और ये हम लोग का प्रोजेक्ट थोड़ा देखें। बहुत सारी आदमियाँ हैं जो ये हाँ, जानकारी इससे नहीं है। जिसके जानकारी नहीं है वो आएंगे तो जानकारी मिलेगा कैसे काम किया जाता है, थोड़ा सेफ्टी इसमें बहुत रहता है। आपका शुभ नाम बोल दिया क्या? जय गोविंद यादव मेरा नाम है, और हम झांझरा से झाझा प्रोजेक्ट में काम करते हैं।